Our dear students of class 11th, subject mathematics, dear students, अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करेंगे, जो कि आप परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं. तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3. In previous videos we have done it is some questions. Now dear students, today we will start from question number 6. Question number 6 of this exercise is find textbook है NCERT textbook, NCERT textbook से questions हम पढ़ रहे हैं NCERT textbook. तो question number 6, find value of n if permutations of n minus 1 taken 3 at a time is to np4, that is permutations of n objects taken 4 at a time is equal to 1:9. That is n minus 1 p3 p is to n p4 is equal to 1:9. तो आपको क्या निकालना है? Find the value of n. n का वैल्यू हमें निकालना है. तो dear friends, it is a very easy question. Let us solve this. तो हमें यहाँ पर क्या है? n minus 1 है, और n minus permutations of n minus 1 taken 3 at a time is to permutations of n objects taken 4 at a time is equal to 1:9. तो dear students, इसको हम ये is to है, it means n minus 1 p3 divided by n p4 is equal to 1/9. 1:9, 1 divided by 9. और रेशियो है, ये इनका रेशियो है 1:9, 1 divided by 9, 1/9. तो इसी तरह से यहाँ इनका रेशियो है, ये भी मैंने इस तरह लिखा है. तो आप जानते हैं ये फार्मूला आपको पता है, एन पी आर किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये फार्मूला, इसका यूज हम यहाँ करेंगे. n की जगह यहाँ पर है n minus 1, so it is n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3 factorial whole divided by np4 means n factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 1/9. Easy question है. तो it is n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3 factorial whole divided by n factorial divided by n minus 4 factorial. So it is equal to n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3. So it becomes n minus 4 factorial whole divided by n factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 1/9. So dear friends, it is equal to, यहाँ पर करेंगे हम. So it is n minus 1 factorial divided by n minus 4 factorial. न्यूमरेटर है इसका n minus 1 factorial divided by n minus 4 factorial. न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. तो होल डिवाइड बाय है, तो इसका रेसिप्रोकल इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर, वी विल मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus 4 फैक्टोरियल. सो इट इज n minus 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या यहाँ पर मालूम होता है कि हम यहाँ n minus 4 फैक्टोरियल और n minus 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल is equal to 1/9, or it is equal to n minus 1 factorial. N factorial is equal to n into n minus 1 factorial.
n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पर न्यूमरेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रहेगा 1 विच इम्प्लाइज 1/n इज इक्वल टू 1/9। सो सिंपली वी गेट हियर n into 1 that is n is equal to 9। सो इसका आंसर हमें ये मिल रहा है n is equal to 9। सो हमें क्या निकालना था, फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू हमें 9 आ गया। बहुत इजी है। यहाँ पर हमने n माइनस 1 p3 डिवाइड बाई n p4, तो यहाँ हमने यहाँ फार्मूला यूज़ की, हमने ये फार्मूला यूज़ की n p r विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। परम्यूटेशन की फार्मूला है ये हमने यहाँ पर यूज़ की। हाँ, तो इस तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे। Now we will take question number 7 of this exercise. Question number 7 is find r, find a value of r if इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1, 6pr। और इसका सेकंड पार्ट है, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड पार्ट है इसका 5pr is equal to 6pr minus 1। तो हमने ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है ये भी। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज टू पार्ट्स वन बाय वन। सो फर्स्ट पार्ट इज 5pr, यानी परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस permutations of 6 objects taken r minus 1 at a time. So dear students, you use here formula NPR which is equal to n factorial divided by n minus r factorial। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये फार्मूला। तो यहाँ पर NPR, n की जगह पर यहाँ 5 है और r की जगह पर यहाँ पर r ही है। तो यहाँ पर n की जगह 6 है और r की जगह यहाँ r minus 1 है, r minus 1 है। So using this formula we write here 5 factorial divided by 5 minus r factorial, right? Which is equal to 2 into 6 factorial divided by 6 minus this r minus 1, 6 minus r minus 1, r minus 1 factorial, right? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, n तो यहाँ पर 6 है, 6 माइनस r की जगह यहाँ पर r माइनस 1 है। तो वी विल गेट हियर विच इम्प्लाइज इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस r और माइनस 1, 6 माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस 1 होगा ये। तो वी विल गेट हियर 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट हियर नाउ 6 माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल, इट विल बी 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो आप क्या यहाँ पर, आपको क्या यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग,
यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी है 5 फैक्टोरियल, तो दोनों साइड में 5 फैक्टोरियल जब है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। सो वी आर लेफ्ट हियर 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर 1 ही रहा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 दैट इज 12, 2 इंटू 6 यहाँ पर 6, 5 फैक्टोरियल चला गया 5 फैक्टोरियल के साथ, 5 माइनस आर फैक्टोरियल चला गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल के साथ, तो यहाँ पर रहा 1 अपॉन 1, तो यहाँ रहा 2 इंटू 6 दैट इज 12 डिवाइड बाई 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। So we are left here with 1 by 1 is equal to 12 by 7 minus r into 6 minus r. So let us move here. We will get here simply 1. We will get, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 minus r into 6 minus r into 1. So we will get here 7 minus r into 6 minus r. 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सो वी विल गेट 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12 इंटू 1 दैट इज 12। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इट इज 7 इंटू 6 इट इज 42 माइनस 7 इंटू आर माइनस 7 आर माइनस आर इंटू 6 आर, वी विल गेट हियर 13 आर minus minus into minus plus r into r, we will get here r square which is equal to 12, or we will arrange it, we will get first r square minus 13 r और यहाँ पर plus 42, तो 12 यहाँ शिफ्ट करेंगे, 12 यहाँ पर शिफ्ट करें तो यहाँ पर 0 रहेगा, so finally we will get r square minus 13 r plus 42 minus 12, we will get here 30 is equal to 0. So this is a quadratic equation. We can solve it by different methods, using quadratic formula, using factorization, using splitting middle term. So many ways we can solve this quadratic equation, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation जो आपने 10वें में पढ़ी है, ये quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइजेशन के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यू हैव लर्नड ऑलरेडी फैक्टराइजेशन, सो वी विल गेट हियर r स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 और माइनस और क्या करेंगे हम 6, और या हम करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम मिडिल टर्म यहाँ स्प्लिट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो वी विल गेट हियर r स्क्वायर माइनस, इसको हम स्प्लिट करेंगे माइनस 3 और माइनस 10 r, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका सम और सब्ट्रैक्शन करके हमें माइनस 13 r बनना चाहिए, दैट इज माइनस 3 r माइनस 10 r विच इज इक्वल टू माइनस 13 r। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 3 इंटू माइनस 10 दैट विल बिकम प्लस 30। सो यहाँ पर हमें 30 है, 30 इंटू 1 दैट इज 30। सो इन बोथ द वेज वी आर करेक्ट हियर, प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर और हम कॉमन लेंगे, और इन दो में से और कॉमन लेंगे, और इन दो में से कॉमन क्या निकलेंगे देखेंगे अभी, दैट इज और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर और माइनस 3 रहेगा, माइनस यहाँ पर हम 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा और माइनस रहेगा यहाँ पर 3, माइनस 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। सो r माइनस 3 और r माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, सो वी विल टेक हियर r माइनस 10, एक फैक्टर आएगा इनटू r माइनस 3 which is equal to 0। सो हियर आइदर यहाँ पर r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो हियर विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर हमें 10 आ गया और यहाँ पर r हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 3, तो r के दो वैल्यू हमें आ गए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या है 5pr, तो r कभी भी इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर r है, और r का वैल्यू हमें 10 आ गया और 3 आ गया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर
नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू बिकॉज r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, r इज, सो r इज नॉट इक्वल टू 10, ये हमने इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज r कैन नॉट बी मोर देन 5, ये 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, सो दिस वैल्यू ये हम रिजेक्ट करेंगे और ये वैल्यू स्टैंड रहता है बिकॉज r इज यहाँ पर 3 है तो ये 5 से छोटा है, तो ये वैल्यू रहेगा इसका आंसर, r इज इक्वल टू 3। तो r का वैल्यू हमें निकालना था, फाइंड वैल्यू ऑफ r, तो हमें यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है और हमने r का वैल्यू 3 निकाला। और आई होप दिस क्वेश्चन इज सिमिलर, ये क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 2 जो है ये आप खुद कर सकते हैं। आप ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि सिर्फ यहाँ पर 2 था मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, 2 के बगैर ही आपको यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर, तो फिर आप ऐसे ही इसको सॉल्व या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, फिर इससे फैक्टराइजेशन करके आपको r का वैल्यू या, तो ये क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ, ये आप खुद कर सकते हैं ये क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, बस खुदा हाफिज़।